नित्यानन्देश्वर समारम्भाम् नित्यानन्देश्वरि मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। इस समय हमारे साथ उपस्थित सभी दर्शकों, भक्तों का मैं प्रेम एवं आशीर्वाद सहित स्वागत करता हूँ। I welcome all the devotees, disciples, Samaji, Satsangi, Sri Mahants, Mahants, Kotaris, Tanedars, mainly the chief guests today for the Nitya Satsang, Swami Dayanandaji and Jagdishwaranandaji from our Acharya Gaddi, Govindamat. I welcome both the Swamis on behalf of me and Govindanandaji and Dayanandaji from Govindamat. I welcome both of them on behalf of me and on behalf of Nityananda Dhyanapeetham. Both Swamis are trustees of Govindamat, which is the Acharya Gaddi of Mahanirvani Akada. Paramadarshya Mahamandaleshwar Annapurna Ashram Omkareshwar Swami Govindanandagiri and Swami Dayananda Shastri Acharya Peeta Govindamat. I welcome both the Swamis. Both are from our Guru Gaddi. Govindamat has a long association with our Nityananda Dhyanapeeta. One, Govindamat is the Guru Gaddi of the Mahanirvani Akada, our Akada, which is the headquarters in Varanasi. And second, Govindamat's earlier Acharyas, Swami Atulananda, initiated my Sri Vidya Guru in Sri Vidya. So, Govindamat becomes my Paramaguru Sthana, Guru's Guru, Paramaguru Sthana, my Guru Tiruchi Swami, who initiated me into Sri Vidya, and his Guru Atulananda Swami is the head of the Govindamat. So Govindamat becomes my Paramaguru Sthana, Paramaguru Gaddi, not just Guru Gaddi, Paramaguru Gaddi. So we have a long association with Govindamat, which is the Guru Gaddi for Mahanirvani Akada and Paramaguru Gaddi for Nityananda Dhyanapeeta. I welcome both of them and offering on behalf of me and on behalf of Dhyanapeetham now I offer, on behalf of all of you, I offer the traditional Dhyanapeetham respects to both the Swamis and I welcome them for the morning satsang. Throughout the year, every day, you are all listening to me. And today, one day, I request both the Swamis to bless you all. First, I will invite Swami Dayananda Shastri, Acharya Peeta, Govindamat. Swamiji is heading the Sannyas College in Govindamat, which trains sannyasis and allots them to a different Mahamandaleshwar Peetas and sends them to be head of the different mutts and ashrams. This is one of the oldest sannyas training college in Kashi. Swamiji is heading that. So, I request Swamiji to bless all of us. बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।
ओम सानंदमानंद बने बसंत मानंद कंदम हतपाप वृंदम वाराणसीनाथ मनाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौळीस्फुर तारानायकशेखरां स्मितमुखी मापीनबख्योरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतिं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत परामम्बिकां शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य परमादरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य पीठ पर हमारे परम पूज्य निर्वाण अखाड़ा के महामंडलेश्वर पूज्य महाराज जी परमहंस स्वामी, जिनका नाम नहीं लेना चाहिए फिर भी, परमहंस स्वामी नित्यानंद महाराज जी के चरणों में वंदन। परमादरणीय आप सभी संत वृंद, गोविंद मठ के कोषाध्यक्ष एवं मंत्री स्वामी गोविंदानंद जी महाराज, जो अन्नपूर्णा आश्रम के महामंडलेश्वर जी हैं, परमादर्श महामंडलेश्वर हैं, आप सभी भक्तिमती माताएं, भक्तजन, परम पूज्य निर्वाण पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विश्व देवानंद पुरी महाराज जी ने 2010 के जो इलाहाबाद प्रयागराज के कुंभ मेला के अवसर पर जब महाराज जी का नाम लिया, स्वामी जी का नाम लिया, उस समय मंडलेश्वर लोग नहीं जानते थे कि इतने बड़े विभूति जो है ना दक्षिण भारत में है। क्योंकि दक्षिण भारत में जितने भी आचार्य हुए हैं, दक्षिण भारत ने आचार्यों को दिया है, जिसमें आद्य शंकराचार्य भगवान शंकराचार्य हुए हैं, रामानुजाचार्य हुए हैं, श्रीरंगम जी में बड़े बड़े आचार्यों को जन्म देने वाला ये दक्षिण भारत है। और उस दक्षिण भारत में पूज्य महाराज जी, जिनका आप बड़े पुण्य से, बड़े भाग्य से आज भगवान विश्वनाथ के चरणों में बैठ करके दिव्य दर्शन कर रहे हैं, ये जो बात है ना, ये कोई प्रयागराज में नहीं जानते थे। In the Kumbh Mela, Acharya Vishwadevanand ji, who is the Acharya Mahamandaleshwar of Mahanirvani Akhada, when he first time took the name of Paramahansa Swami Nityanand ji, everybody got astonished that in South India, which has produced great masters like Sankaracharya, Ramanuja, same the great master has come into into the North India, Paramahansa Nityanand ji. And all of you are so lucky to sit here at the feet of Vishwanatha and having darshan of Paramahansa Sri Nityanand Swami ji. तो जब महाराज जी को निर्वाण पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर ब्रह्मलीन जो हो गए हैं, विश्व देवानंद जी पुरी महाराज जी को पूछा गया, मैं उनके बहुत करीबी था, साथ में रहता था, बोले कि आप स्वामी जी को महामंडलेश्वर बना रहे हैं। तो उन्होंने कहा, मैं महामंडलेश्वर बनाने वाला नहीं हूँ, ये गंगा मैया ही बुला रही है। ये जो गंगा मैया है, त्रिवेणी संगम है, इन्हीं को बुलाया है। When Acharya Vishwadevanand ji mentioned Swamiji's name as Mahamandaleshwar, at that time when people asked him, he said, I am not making him as Mahamandaleshwar, it is Triveni Sangam, where Ganga, Yamuna, Saraswati meets together.
that Sangam Sthal has invited Swamiji to this place, to that particular place. इसलिए महाराज जी जो थे ना, स्वामी विश्वदेवानंद जी, इतना श्रद्धा करते थे आप जी के प्रति, अपने परमहंस स्वामी जी के प्रति इतना भाव रखते थे और इतना प्रेम से, आज उनका शरीर नहीं है लेकिन हमेशा जो है ना याद करते थे और कहते थे कि जब भी बंगलोर में, कर्नाटक में, दक्षिण भारत में, विदेश में कहीं भी कार्यक्रम होगा तो जरूर हम लोग जाएंगे। ऐसे साधुवाद, धन्यवाद सबको बोलते थे वो। He had intense love for Swamiji, and whenever he always mentioned, whenever Swamiji's programs happens across the world, he would like to visit those places and make his presence. जब पूज्य महाराज जी का शरीर छूट गया, बनारस से आए, कलकत्ता से वाराणसी आए, वाराणसी ऋषिकेश गए और शरीर में कोई दुर्घटना हो गया अचानक ऋषिकेश हरिद्वार के बीच में, तो उस समय जो है ना स्वामी जी की चर्चा भी हम लोग के सामने सबका प्रकाश आया कि हमारे सामने इतना योग्य महापुरुष हैं। क्योंकि अभी अभी वेद मंत्र पढ़ रहे थे ब्रह्मचारी लोग, न धने न त्यागे न अमृतत्व मानसु न वित्ते न तर्पणियो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्त मद्राख्यम चेतत्वम। परमात्मा को प्राप्त करना है तो आप श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के पास जाना पड़ेगा। जो श्रोत्रिय हैं और जो ब्रह्मनिष्ठ हैं, श्रोत्रिय का अर्थ होता है जो संपूर्ण वेद, उपनिषद, गीता, प्रस्तांत्रय के विद्वान हो, और ब्रह्मनिष्ठ का अर्थ है कि जिसके जीवन में ब्रह्म में निष्ठा हो, साधना हो। Swamiji is mentioning that when Acharya Vishwadevanandi has left his body because of certain mishappening has happened, at that time Paramahansa Swami Nityanandaji's name revealed that who is going to take the complete responsibility of the Acharya Mahamandaleshwara. So at that time Swamiji's name came, and when we chanted, our brahmacharis, our sannyasis chanted the sloka that Amritattva Manasahu. So Srotriya, the Amritattva Manasahu, is explaining the meaning of that person who is a Trikaladasi, who has given discourses on all the Upanishads and the main scriptures, Prasthanatraya. प्रस्तांत्रय में गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र है, जहाँ का ये प्रसंग यही है कि तरति शोकम आत्मवित, आत्मवेत्ता ही इस जन्म मृत्यु रूपी शोक से पार हो सकता है। आत्मवेत्ता तो आप बाद में बनेंगे, लेकिन जो गुरु होते हैं, जो सद्गुरु होते हैं, वो यदि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ नहीं होंगे, वो यदि साक्षात ब्रह्म तत्व का अनुभूति नहीं करेंगे, देहाध्यास की निवृत्ति नहीं होगा, तो आपको कितना भी वो बतावे ना, उसका वो फलीभूत नहीं होगा। He is mentioning that when we want to have the knowledge of the Atman, we need to have a guru who has the knowledge, who has the experience of the Atman, Brahma Jnana. So until we have the guru who is the knower of the Brahma, how much we try, we will not be able to get the knowledge of the Brahman. आपने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया अथवा नहीं किया, जब गीता जी में पढ़ते हैं, भगवत गीता का श्रवण करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के विषय में यही बताया जाता है, प्रहसन्नीव भारत सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युत। दोनों सेना के बीच में आप रथ खड़ा करें तो भगवान कृष्ण को अस्त्र लग रहा है, शस्त्र लग रहा है, आप सारथी बन करके, अर्जुन रथी है, अर्जुन विस्मय में है, लेकिन भगवान कभी भी दुखी होकर के कभी बोले नहीं। यशोदा जी की गाली खाया, गोपालों ने उनको जो है दही और मक्खन की चोरी का वो विषय बनाया, यशोदा जी दौड़ाई, लेकिन भगवान कृष्ण क्या करते थे? हमेशा प्रसन्न रहते थे, हमेशा हंसते रहते थे। In the midst of Mahabharat war, in the Kurukshetra, between Kauravas and Pandavas, even from both sides the fighting is happening, but in the middle, Lord Krishna is perfectly in the state of equanimity, is undisturbed state. So same way in the early childhood, when he used to rob the milk or the curd, and Yashoda Maya used to chase, and other people, other Gopalas used to chase, but even at those times, he always remains in the prasanna, is mean in the blissful state. तो जिस समय स्वामी जी का, अपने महाराज जी का जिस समय
चद्दर विधि हरिद्वार में हुआ, ये इलाहाबाद में हुआ, प्रयागराज कुंभ में, तो अपने विश्व देवानंद जी महाराज जी को, आचार्य जी को लोगों ने पूछा कि इनके पास कौन सी क्या है, कौन सी सद्गुण है। तो एक महाराज जी ने, निर्वाणी अखाड़ा के बहुत बड़ा अधिकारी था, उसने कहा कि देखो अनेक आश्रम है, अनेक स्थान है, सभी पर ब्रह्म विद्या का प्रचार होता है, स्वाध्याय होता है, सत्संग होता है, स्वयं जो है योगासन के माध्यम से आपके टेंशन, दुख, चिंता की निवृत्ति स्वामी जी कराते हैं, महाराज जी कराते हैं। लेकिन आप सब देखो मत। आपने सुना है कि बहुत बड़े बड़े आश्रम हैं, आजकल तो आश्रम बहुत बड़े बड़े सभी के हैं, छोटे से छोटे महाराज जी का भी 2-3 आश्रम है। लेकिन आपने स्वामी जी के यहाँ जो दर्शन कर रहे हैं, आपने क्या देखा? तो हमारे महाराज ने कहा कि आपने एक चीज अनुमान किया। बोले क्या है? मुखम प्रसन्नम विमला च दृष्टि। ये देखो, ये लिखा है शास्त्रों में। जैसे वहाँ स्वामी विश्वदेवानंद जी, आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विश्वदेवानंद जी asked, what is the speciality with Swami Paramahansa Nityanand ji, which is not with other gurus or other places. Whenever we go to learn meditation or yoga, there are several mutts, several ashrams, we go and learn meditation and yoga from them. But what is speciality with Swamiji? When he asked his other Mahants and Mahamandaleshwars, they mentioned the greatest quality Swamiji has is always in the blissful state. तो महाराज जी ने ये कहा कि देखो, यदि हम लोग भी मंडलेश्वर हैं, आचार्य हैं, अरबों करोड़ों में रहने वाले हैं, अनेक संपदा है, लेकिन जो मुख में प्रसन्नता, जो आनंद, जो हृदय का उल्लास, जो भगवान के चरणों में अनन्य भक्ति, जिसको शास्त्रों में वैराग्य, त्याग इत्यादि जो देखने को मिलता है, ये हमारे स्वामी जी में है। इसमें दो राय नहीं है। The bliss that is reflecting in Swamiji's face, and the vairagya and the tyaga which is mentioned in the Shastras, the highest spiritual achievement, everything is a reflection in Swamiji's case. इसलिए गीता जी में जब भगवान कुछ कहते हैं तो अर्जुन का ये कहना है कि मैं बहुत सुनना चाहता हूँ, लेकिन आप बोलते तो बहुत कम हैं। तो भगवान ने कहा, देखो अर्जुन, विष्टम्यहमिदं कृष्ण एकांशेन स्थितो जगत अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन। तो बहुत जान करके करेगा क्या, बहुत सुन करके करेगा क्या, अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन। ये संसार में जितने भी धन है, वैभव है, बल है, ज्ञान है, बुद्धि है, वैराग्य है, एकांशेन स्थितो जगत, मैं एक अंश में ही जो है ना सर्वत्र व्याप्त हूँ, अखिल ब्रह्मांड में। लेकिन श्री अर्जुन महाराज जी ने जिस समय भगवान के चरणों में जाते हैं और जिस समय शरणागति में आ जाते हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, तो भगवान संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण विभूति बताने के बाद उनको कहते हैं मदनुग्रहाय, मेरे अनुग्रह से विराट रूप का दर्शन तुम्हें होगा। इसलिए विराट रूप को देखने के लिए इस आँख की जरूरत नहीं है। ये हमारे जो आँख है, इसमें 2 चश्मा है, एक पाप है, एक पुण्य है। is mentioning that when Arjuna wanted to know more about dharma, more about the religion and the spirituality, the Lord Krishna said, you enough, how much you know, that much will be still be there to know. But if you know the bigger picture of me, the Virata Purusa of me, you will know the Brahman itself. But you can't see me through your normal eyes, because the eyes which we are having, it has got spectacle in it. In one side of the eye we have papa, and in another side of the eye we have punya. Punya means the virtue, and पापा मीन्स द sin. तो ये जो आपकी चर्म चक्षु है, ये जो आँख है, इस आँख में कभी सत्कर्म होता है, कभी असत्कर्म होता है रूप के द्वारा। लेकिन भगवान ने कहा कि जिस अर्जुन परमात्मा का दर्शन करते हैं, मम दर्शन फल परम अनुपा
जीव पाव निज सहज स्वरूप, सवरी के प्रति भगवान राम ने कहा है। लेकिन जिस समय भगवान का दर्शन वो करते हैं तो कहते हैं दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमीश्वरम। दिव्य नेत्र के द्वारा विराट रूप का दर्शन आपको करना होगा। इसी प्रकार से पूज्य महाराज जी ने, स्वामी जी ने आपको दोनों आंख से अलग किया है। आपके पास पाप भी नहीं है और पुण्य भी नहीं है। यदि उस आत्मा को जानना है तो दिव्य नेत्र की जरूरत है। और ये दिव्य नेत्र वाराणसी में, बनारस में जो आप लोगों को महाराज जी ने, उसकी कोई कमी नहीं है। वो फैक्ट्री इतना है कि दिव्य नेत्र अपने आप बनते रहते हैं, उसकी कोई कमी नहीं है। वो अनुग्रह है, भगवत अनुग्रह, गुरु कृपा। ये जो सदगुरु की जो कृपा है, महाराज जी अकेले आ जाते यहाँ वाराणसी में, अपने शिष्यों के साथ आ जाते। आप लोगों को लेकर के आने का क्या प्रयोजन था? भगवान विश्वनाथ का दर्शन आपने किया। और परसों में गंगा किनारे गया तो मणिकर्णिका घाट में देखा तो लोग बोल रहे थे कि कोई मंडलेश्वर जी आए हैं, कोई मंडलेश्वर जी आए हैं। वो मल्हार लोग जो नहीं जानते हैं वो बोल रहे थे मंडलेश्वर जी आए हैं। तो एक ने कहा कि ये जो आए हैं इनका क्या नाम है? तो एक ने कहा कि स्वामी नित्यानंद परमहंस। When Arjuna wanted to have darshan of the Virata Swarupa, Krishna told only with the Dibya Netra you can have darshan of the Virata Swarupa. So same way here Swamiji has made you aloof from the both virtue and sin and giving the Dibya Netra to see the truth as it is, and it happens with the Guru Krupa, with the blessings of the Master, and when we surrender completely to the Master. So just he's mentioning that couple of days before when we were in Manikarnika Ghat, and some people were talking about who is the Acharya, who is Mahamadleshwar, who is there. So somebody told that the Guru is Paramahansa Swami Nityanand Ji, who is with all his devotees are here in meditation. तो जो स्वामी नित्यानंद शब्द है, नित्यश्चासो आनंदश्च नित्यानंद, ऐसे व्याकरण में बनता है। In the Vyakarana, Sanskrit Vyakarana, Nitya plus Ananda is a Sandhi. Nityananda is Nitya plus Ananda. ये जो नित्यानंद शब्द का प्रयोग आता है, नित्य उसको कहते हैं नितराम भव नित्यम, जो एक रस में रहे। और आप जब नहीं थे तब भी आप थे, आप नाम रूप में नहीं हैं तब भी आप थे, पहले भी आप थे। अव्यक्त दिन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्यव तत्र का परिदेवना, आप पहले से थे। इसको कहते हैं नित्य। Nitya means you were there before, you are now, you will be there in future. It's eternal. और उसमें जो आनंद रहने वाला है, आनंद आपका स्वरूप है, आपका एक रूप है 3.5 हाथ शरीर का। And when the person remains in the state of bliss in all these three places, ये जो आप काले हैं, गोरे हैं, जैसे भी हैं, ये आपका स्वरूप है, हम लोग का रूप है। ये स्वरूप क्या है? ये स्वरूप आपका नहीं है, हमारा नहीं है। स्वरूप कौन है? सच्चिदानंद जो स्वरूप आपका है, वही स्वरूप जो है ना, वो नित्यानंद है। the color of the body, complexion of the body is not our identity, but Sachidananda, our internal, the inner sky, is our actual identity, Sachidananda. इसलिए जो सच्चिदानंद स्वरूप है वो नित्यानंद नाम है। माता जी को भी शास्त्रों में कहा गया है नित्यानंद करी बरा भय करी सौंदर्य रत्ना करी। अन्नपूर्णा महात्रिपुरा सुंदरी जगदम्बा मीनाक्षी को भी शास्त्रों में नित्यानंद बताया है। और Jagdamba Meenakshi is also in Shastras known as Nityananda. Mata Annapurna Devi is also in the sloka itself. Nityananda is mentioned. इसलिए पूज्य महाराज जी का जितने भी वहाँ इलाहाबाद के प्रयागराज में जो मंडलेश्वर लोग थे, जो संत लोग थे, जो साधु लोग थे, सब लोग ने यही देखा ये आपके आश्रम बहुत बड़े बड़े हैं, भगवान की कृपा से सब सुलभ है, आप अहोभाग्यवान है, ऐसे महापुरुषों के चरणों में हैं। और हम भी आज मानते हैं कि अहोभाग्य है कि महाराज जी का दर्शन आज हुआ। ये बड़ी कृपा है भगवान। He is so benevolent that he had the darshan of Swamiji. And
और बहुत सुंदर लगा। महाराज जी के विषय में वो ही बता रहे थे, सब लोग बड़े बड़े संतों के अभिप्राय ये था। वो बिरले पाले विश्वेश्वरानंद जी हैं और बड़े बड़े संत कहते थे कि स्वामी जी को कभी आप दुखी भाव से कभी नहीं देखा। Swami Vishweswaranand ji, Mahamandaleshwar from Maharashtra, Bombay, he was also mentioning in the Akhada that Swamiji is always in blissful state, always smiling. हमेशा आनंद में रहने वाला, ऊपर में भी आनंद है, भीतर में भी आनंद है, और आनंद स्वरूप आप जब हो जाएंगे तो टेंशन, He is from inside and from outside is always in bliss. And when you live like that, you will always be tension free. इसलिए आप जो पूज्य महाराज जी का दर्शन कर रहे हैं, ऐसे संस्कृत में कहा गया है, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन अपार संविद सुख सागरेस्मिन् लीनम परे ब्रह्मणि यस्य चेत, वो धन्य है। इसी रूप में हमारे निर्वाण पीठाधीश्वर के जो आचार्य महामंडल और वर्तमान में नए हुए हैं स्वामी विश्वकानंद भारती जी, उन्हीं के तरफ से भी पूज्य महाराज जी को ये आशीर्वाद उन्होंने दिया है, संदेश भी दिया है, आत्मा के रूप में एक हैं। और अपने गोविंद भट्ट के तरफ से मैं आग्रह करूंगा कि जब भी समय हो तो हम लोग के आश्रम में भी आवें और चरण थोड़ा रहे तो हम लोग भी अहोभाग्य समझेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य चरणों में वंदन। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। I thank Swamiji Dayanand Shastri ji on behalf of me and on behalf of Nityananda Dhyanapidam for gracing all of us, for being here and gracing all of us. Now I request Paramadarsha Mahamandaleshwar, Annapurna Ashram, Omkareshwar, Swami Govindananda Giriji Maharaj to bless all of us. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। विश्वेशं माधवं ढुण्ढिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गङ्गां भवानी मणिकर्णिकां जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रुं परिपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। पूज्य प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय इस सुंदर संस्कार के रूप में जो सभा आयोजित है, इस सभा के परमाध्यक्ष परम ओजस्वी, परम तेजस्वी, या अतिशयोक्ति नहीं हो तो यह भी कह लूँ कि स्वामी विवेकानंद के रूप में प्रतिभूत पूज्य स्वामी नित्यानंद जी महाराज, हम उनके चरण वंदन करते हैं। He's offering his respect to Swami Paramhans Nityanand ji. He is seeing in the form of Swami Vivekananda ji. और मंच पर आए हमारे महाराज जी ने बड़ा आह्लादित कर दिया एक शब्द कह करके कि गोविंद मठ आचार्य पीठ है और वह हमारे परम गुरु की परंपरा का सर्वोत्तम स्थान है काशी में। महाराज श्री ने कहा कि महाराज श्री कुछ आशीर्वाद इन भक्तों को दें, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो हमारी वैदिक परंपरा है, जो शास्त्रीय परंपरा है, वह गुरु शिष्य की परंपरा है। अगर असत अनादि है, अगर अंधकार अनादि है, तो प्रकाश भी अनादि है। और उस अंधकार की निवृत्ति के लिए प्रकाश स्वरूप परमात्मा एक पक्ष में साक्षी भाव से खड़ा है, वही सदगुरु का स्वरूप ग्रहण करता है। जैसे स्वामी हमारे
परमहंस स्वामी नित्यानंद जी महाराज आपके सामने प्रकाशक स्वरूप विराजमान। When Swamiji, His Holiness is presenting that in our Vedic tradition, we have the parampara of Guru and Shishya, master and disciple. And if we understand that darkness has no beginning, same way light also has no beginning. And our Guru, our master, comes in the form of light in our life. हम जब उपनिषद में जाते हैं तो वहाँ एक मंत्र ऐसा आता है, परांच खाने व्यत्यत शंभो तस्मात् परांग पश्चाति नान्तरात्मन कश्चित धीरा प्रत्यगात्मान नवेक्षत और कश्चित धीरा प्रात्यगानो दीक्षत आवृत चक्षु अमृतत्व इच्छन। कहा ये जितनी इंद्रियां हैं, आँख हैं, नेत्र कान हैं, त्वक है, हाथ है, पैर है, ये क्या है? भगवान ने इसको बाहर देखने के लिए कर दिया। यह बाहर को देखता है, बाहर की आवाज़ सुनता है, अंदर को नहीं देखता है। तो कहा कश्चित धीरा, कोई धीर वीर गंभीर साधक जिज्ञासु होता है अर्जुन की तरह, जो भगवान कृष्ण के मुखारबंद से निकली हुई गीता को श्रवण करके अपना जीवन धन्य करता है। उसी प्रकार से आप लोगों के सामने पूज्य महाराज श्री हमारे कृष्ण के रूप में विराजमान हैं और गीता का उपदेश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि आवृत चक्षु अमृतत्व इच्छन, जो अमृत प्राप्ति की इच्छा आपकी है, जो जीवन का परम उद्देश्य है, उसको हम प्राप्त कर जाते हैं, हमारा जीवन धन्य हो जाता है। नानक साहब कहते थे, नानक नजरी नजर निहाल, अगर गुरु की दृष्टि मात्र पड़ जाए तो शिष्य का जीवन धन्य हो जाता है। When, according to our Vedic tradition, when the disciple listens to the master, the life of the disciple becomes great. He realizes the truth. This is what Nanak Dev Ji has mentioned. मैं श्रीमद् भागवत के एक उदाहरण को प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके सामने। वह गुरु शिष्य परंपरा का कितना सुंदर उदाहरण है। श्रीमद् भागवत में यह कथा मुझे बहुत प्रभावित करती है, इसलिए 2 मिनट में आपको सुना देता हूँ। राजा रहुगण को राज्य करते करते वैराग्य उत्पन्न हुआ और ज्ञान प्राप्ति के लिए वो गुरु की खोज में जाने लगा। पालकी पे बैठे हैं, कहार उन्हें ले जा रहा है। कहाँ जा रहे हैं? कहा ज्ञान प्राप्ति के लिए ऋषि की खोज में जा रहे हैं, गुरु की खोज में जा रहे हैं। गुरु उनका रास्ते में ही बैठा है। एक जो कहार ढोने वाला है वो थक गया है, बीमार हो गया है, एक आदमी की कमी हो गई है, तो व्यक्ति को ढूंढने लगे तो एक देखा कि बड़ा स्वस्थ हृष्ट पुष्ट जो है सदा प्रसन्न रहने वाला स्वस्थ व्यक्ति एक पेड़ के नीचे बैठा है। उसी को पकड़ के ले आया और उसे जो है कहा कि ये राजा का रथ, ये जो पालकी है लेकर के चलो। तो इसको अनुवाद करें। Raja Bhos king was sitting in Palak and searching for a guru. In the meantime, while he was searching, king saw a healthy person sitting under a tree. And he was always smiling. He was very healthy. वह पालकी पे लगाया गया, लेकिन जिसकी दृष्टि व्यापक हो जाती है, जो उस नित्यानंद को हृदय से लेकर के जगत के एक एक प्रभुत्व में देखता है, जिसकी दृष्टि व्यापक हो जाती है, जिसकी उदार दृष्टि हो जाती है, वह एक छोटी सी चींटी है या कोई जीव जंतु जो सड़क पे दिखते हैं तो वह कूद पड़ते हैं उसको बचाने के लिए। तो राजा के माथे में चोट लग जाती है। चोट लगती है तो राजा डांटता है। वह जन्मांतर का गुरु है, लेकिन राजा उसे डांटता है तो वह जीवन में पहली बार बोला। गुरु पहली बार शिष्य से बोला, हे राजन, कह रहो गणैर तत्तपसा नयाति न चेज्जया। कहा, हे रहुगण राजा, जिसकी प्राप्ति के लिए तुम जंगल को जा रहे हो, जिस गुरु की प्राप्ति के लिए तुम राज्य छोड़ करके वनवास को जा रहे हो, कहा वह ऐसे नहीं मिलता। रहुगणैर तत्तपसा, तपस्या से भी प्राप्त नहीं होती है। न तत्तपसा नयाति न चेज्या। कहा बड़े बड़े यज्ञ कर डालो, कहा इससे भी प्राप्त नहीं होता। न निर्वपनात् गृहाद्वा, कहा घर भी छोड़ के कहीं चले जाओगे तो भी यह प्राप्त नहीं होता। तो कहा कैसे प्राप्त होता है? करहो गणैर तत्तपसा नयाति न चेज्जया न निर्वपनात् गृहाद्वा न छंदसा
नैव जलाग्नि सूर्य विना, कहा कि वह तपस्या से नहीं प्राप्त होता। अग्नि के बीच में बैठ के तपस्या करोगे तभी वह प्राप्त नहीं होता, जल के मध्य में बैठ के तपस्या करोगे तभी प्राप्त नहीं होता। तो कहा महाराज कैसे प्राप्त होता है? गुरु शिष्य को ढूंढ रहा था और शिष्य जो है पहुंच गया गुरु के पास। तो कहता है कि महत पाद रजोभिषेकम, कहा जो अपने गुरु के चरण की धूलि को मस्तक पर लगाता है उसे सब कुछ संसार में प्राप्त हो जाता है। तो यह ऐसा सुंदर योग आनंदवन काशी में। The Guru's vision is always large. When the master saw the king and he is continuously searching for the Guru, at that time the master himself came up and told, the path which you have taken in search of Guru, you will never achieve it. He said, how to find a Guru? He said, shall I do tapasya? He said, no, even if you start doing tapasya in the Agni, in the fire, then also you can't achieve Guru. Even if you go inside the water and do tapasya, then also you can't achieve Guru. Even if your whole life you keep on searching, then also you can't achieve Guru. When he said, then what is the way, what is the mean, how I can achieve Guru? He says, when you go in search of Guru and Guru himself appears, and then you achieve the Guru. The Guru comes when you seek, when you have the real seeking for the Guru comes and blesses you, and when you touch the feet of the Guru and the dust particles that comes from the feet of Guru, that itself is enough for giving you the realization of the life. उपनिषद में कहा जाता है जीव अल्पज्ञ है, गुरु सर्वज्ञ है। स्वामी नित्यानंद ज्ञान पीठ के द्वारा पूज्य महाराज श्री ने सैकड़ों देश में जाकर के अपने जन्मांतर के शिष्य को ढूंढा है। आपने नहीं ढूंढा गुरु को, गुरु स्वयं जाकर के ढूंढा है। You have never searched the Guru, always Master has reached to you. जैसे रहुगण राजा को जर भरत महाराज ने जन्मांतर के गुरु हैं ढूंढ निकाला, ठीक इसी प्रकार से पूज्य महाराज जी ने आप लोगों को ढूंढ निकाला है, आप पर कृपा वर्षण की है, कृपा दृष्टि डाली है। In the scriptures, when Rahugan took birth, his guru searched for him and found out. Same way, when you came to the planet Earth, Swamiji himself found you and brought here. उपनिषद में कहा गया है यमय वेश वृणतो तेन लभ्य, कहा यमय वेश वृणते तेन लभ्य नहीं आत्मा प्रवचनेन लभ्य। गुरु जिसका वर्ण कर लेता है वही शिष्य है। शिष्य कहता है कि स्वामी जी हमारे गुरु हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन गुरु ये कह दे कि ये मेरे शिष्य हैं तो समझो आपका जीवन जो है सार्थक हो गया। If the disciple says that he is my guru, it is not a big thing at all. But if the guru says he is my disciple, it's the biggest thing. तो मैं समझता हूँ यत्र आनंदः यत्र नित्यः आनंदो भवति तत्र स्वामी नित्यानंदः, जहाँ सदैव आनंद हो वही नित्यानंद है। और मेरी शुभकामना है कि पूज्य महाराज श्री की वाणी आपकी वाणी हो जाए, महाराज श्री की दृष्टि आपको प्राप्त हो, महाराज श्री का हृदय आपके हृदय से एकत्व को प्राप्त करे। और मुझे बहुत अच्छा लगा पूज्य महाराज श्री हमारे गोविंद मठ के, मुझे तो जानकारी ही नहीं थी कि पूज्य महाराज श्री की परंपरा में गोविंद मठ भी कहीं जुड़ा हुआ है, तो मुझे तो बहुत आह्लादित हुआ। जब भगवान की अनन्य कृपा होती है तो किसी संत महापुरुष का दर्शन होता है। और मैं महाराज जी से प्रार्थना करूंगा, गोविंद मठ हमारा मठ नहीं है, गोविंद मठ आपके गुरु की गद्दी है, तो आप गोविंद मठ का सदैव ध्यान रखिएगा। और जब भी काशी आइए महाराज जी तो आपका स्वागत है। अपने घर के लिए कोई निमंत्रण नहीं देता, ठीक उसी प्रकार से मैं भी आपको निमंत्रण नहीं दे रहा हूँ, ये आपका घर है, आप जब भी आएँ तो उस कुटिया को पावन करें। इतना कहते हुए महाराज जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ। आप लोगों को काशी विश्वनाथ की ओर से शुभंसा देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। इतना कहते अपने वाणी को विराम करता हूँ। इतिश्य। And he mentioned that Govind Pith is our Parama Guru Pitha, and he need not invite Swamiji. It's his own place, and Swamiji is own house. So.
So I thank Parama Adarsha Mahamandaleshwar Sri Govindanandji Maharaj for blessing all of us on behalf of me and on behalf of Dhyanapitham. As I said, Paramaadarsha Mahamandaleshwar Annapurna Ashram Omkareshwar Swami Govindananda Giriji and Swami Dayanand Sastri Acharya Pita Govindamat. See, it is, as both the Swamis mentioned and as I also mentioned, it is not only our Guru Gaddi, as Parama Guru Gaddi, Swami, from Atulanandaji's time, actually, the Tiruchi Swami's Guru, Shivapuri Baba, who was in Nepal, was given the Jagat Guru Upadhi by Atulanandaji's Guru Krishnanandaji. Then Atulanandaji gave Sri Vidya initiation to Tiruchi Swami. And then Tiruchi Swami gave Sri Vidya initiation to me. So for 3 generations, we have association with Govindamata. And it is not just our Guru Gaddi, it is Parama Guru Gaddi. Guru Gaddi and Parama Guru Gaddi. So, it is very difficult to be accepted in your home by the brothers and the cousins. Understand? I have got the fortune of being accepted by the brothers and cousins in my own home. My Guru Pita and my Guru Gaddi and Parama Guru Gaddi. I thank both the Swamis for being here and gracing all of us, blessing all of us. It is so nice that both of them have taken time and came to be with us and bless all of us. Thank you once again, Swamiji, Swami Dayanand Shastri Ji and Swami Govindananda Giriji. And today we also have one more chief guest, Chief Priest of Kashi Vishwanath Temple, Dr. Srikant Mishra Ji. He is the Chief Priest of Kashi Vishwanath Temple. See, in Tamil, there is a song, Muppodum Thirumeni Dinduvar Adiyarkum Adiyen. Means, whoever touches the deity 3 times a day and worships, they also become worthy of worship and respect. So, I am so happy the Chief Priest of Kashi Vishwanath Temple, Dr. Srikant Mishra, has come to be here with all of us. And I would request him to say a few words and bless all the devotees. It is not an easy joke to maintain a temple like Vishwanath Temple, where so much of rituals are required. It needs literally whole time, mind, energy, everything to be dedicated. I am so happy. See, he cannot actually move out of the temple. Whole day pujas are there. Today morning he finished his Mangalarati, morning puja, and rushed to our satsang just to be with us at least for a few minutes. And we will now be offering our respects to him on behalf of me and on behalf of Dhyanapitham. बहुत बहुत धन्यवाद. स्वागत है. धन्यवाद. It is very nice. It's not an easy joke to maintain, as I said, maintain a temple like Vishwanath Temple, because I know, because we are maintaining few temples, I know how difficult it is. And you all need to know, this is the temple worshipped by largest number of people. The average floating population of Varanasi is 330,000, which is 3 times more than Tirupati, 10 times more than Mecca, 17 times more than Vatican,
and 6 times more than Shabarimala. Understand? 330,000 people come inside Varanasi every day. As per the government report, the floating population. So, lakhs of people bow down to Vishwanatha. Maintain that temple is not a joke. With his busy schedule, he has taken few minutes. We welcome Dr. Shrikant Mishra ji on behalf of me and Dhyanapeetham. Please, I invite him to say a few words and bless all of us. सानंदमानंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। मैं अभी गोविंद मठ से आए हुए स्वामी जी का वक्तव्य श्रवण कर रहा था। सभा मंडप में परम पूज्य स्वामी नित्यानंद जी महाराज, देखिए वाराणसी को आनंदवन कहा जाता है, सानंद मानंद वने वसंतम, और इस आनंद वन में आनंद कंद जो है वो भगवान श्री काशी विश्वनाथ को कहा जाता है। वही आनंद को प्रदान करने वाले हैं। वो वाराणसी के स्वामी हैं, राजा हैं, गुरु हैं, मालिक हैं, अधिष्ठाता हैं, अनाथों के नाथ हैं। ऐसे भगवान श्री काशी विश्वनाथ के इस आंगन में परमानंद को प्राप्त कराने के लिए हमारे बीच में स्वामी नित्यानंद जी महाराज विद्यमान हैं। तो अपने आप में ये अनुपमेयता है, अद्वितीयता है, अलौकिकता है। वाराणसी निवसते नवसुंधरायाम तत्र स्थितिर मखभुजाम भुवने निवासः। वाराणसी पृथ्वी पर नहीं है। प्रयागराज में शास्त्रार्थ हुआ, शंकराचार्य जी बैठे थे, सभी विद्वान बैठे थे। ये निर्णय हुआ कि प्रयाग वो तीर्थराज है। इसका मतलब कि अन्य जितने तीर्थ क्षेत्र हैं वो सब प्रजा कोटि के हो जाते हैं। राजा कोटि का तीर्थ प्रयागराज, क्योंकि अन्य किसी तीर्थ में राज शब्द नहीं लगा है। तो वहाँ पर वाराणसी के विद्वान ने शास्त्रीय तर्क दिया कि वाराणसी निवसते नवसुंधरायाम। वाराणसी तो पृथ्वी पर ही नहीं है, त्रिकंटक विराजिते, भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी हुई काशी, वो काशी जो त्रिपुरारी राजनगरी भगवान शिव की अतिशय प्रिय राजधानी है, वो काशी जहाँ का हर कंकर शंकर समान होता है। यहाँ पर शिव का साम्राज्य है, ये शिव की राजधानी है, अतिशय प्रिय राजधानी है। कैलाश मानसरोवर से चल करके भगवान शिव अपनी राजधानी में आते हैं और यहाँ पर मुक्त हस्त से भक्तों को अभय दान देने के लिए बैठते हैं। This place is called as Anandavana, and this place stands for giving bliss to each and every individual. And Paramahansa Swami Nityanand Ji is here in this place, celebrating and giving bliss to every participants, every being present here. When Lord Shiva comes from Kailasa, he comes. This is the capital of Lord Shiva, and in this place, Lord Shiva continuously keeps on giving. His complete attitude is giving only, sharing and giving. असारे खलु संसारे सारमेतत् चतुष्टयम काश्याम वासः सताम संगः गंगाम्भ शिव पूजनम। असार संसार में चार तत्व ही सारभूत है। काशी में वास करना, इस क्षेत्र में, इस परिक्षेत्र में प्रवेश तभी मिलता है जब जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर का पुण्योदय होता है, तब इस पवित्र पावन क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश मिलता है। और निश्चित रूप से आप सबका सौभाग्य है जो आज इस आनंद वन में आप लोग विराजमान हैं और आनंद की वर्षा करने के लिए परम पूज्य स्वामी नित्यानंद जी महाराज हम लोगों के बीच में विराजमान हैं। It is by the virtue of our past karmas, by virtue of our past actions, that we have been able to be present here, and the reign of bliss that Swamiji is doing here, and we all are receiving in this place.
निश्चित रूप से स्वामी जी ने अभी कहा कि स्वयं कृष्ण के स्वरूप और हम उसी को परिमार्जन करके विष्णु स्वरूप स्वामी जी को बताते हैं, क्योंकि अलंकार प्रियो विष्णु, जलधारा प्रियो शिव, नमस्कार प्रियो सूर्य, ब्राह्मण मधुर प्रिय। अगर देखा जाए तो सर्वम विष्णुमयम जगत, ये शास्त्र कहता है कि सब ये संसार जो है वो अगर वैष्णव देखते हैं तो इसको विष्णुमय देखते हैं, शैव देखते हैं तो शिव सत्यात्मकम जगत, शिव सत्यात्मक इस संसार को देखते हैं। तो निश्चित रूप से भगवान को अलंकार अतिशय प्रिय है, तो अलंकार से सुसज्जित रहने से भी वो विष्णु को प्रियता हो जाती है, प्रसन्नता हो जाती है, तो निश्चित रूप से वो विष्णु स्वरूप भी हो जाते हैं। इसलिए हम मानते हैं कि स्वयं नित्यानंद स्वामी जी महाराज विष्णु स्वरूप हैं और इनके दर्शन मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप राशि सद्यः नष्ट हो जाते हैं। जगत becomes Vishnumaya, means Vishnu is the deity who has the alankar, who has the abhushana, all the ornaments he wears. So the whole world looks Vishnumaya. So same way, like Vishnu, Swamiji himself in the form of Vishnu having the alankara, and just having darshan of Swamiji, the bliss, and the bliss happens inside us. सूर्य जैसे अपने तेजः पुंज के बीच में बैठता है, सूर्य की रश्मियाँ चतुर्दिक प्रसृत होती हैं, उसी प्रकार से भगवान श्री काशी विश्वनाथ भी अपनी अनंत शक्तियों की राशि में बैठते हैं। उनकी अनंतानंत शक्तियाँ चतुर्दिक प्रसृत होती हैं, वो मनुष्य के कर्तव्य और अकर्तव्य का विचार करती हैं। काशी क्षेत्र में ये मान्यता है कि भगवान शिव और भगवती दोनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हैं। भगवान शिव कहते हैं कि देवी एक प्रतिज्ञा आप करिए, एक प्रतिज्ञा मैं करता हूँ कि जब तक इस धराधाम पर मनुष्य जीवित है, आप अन्नपूर्णा के रूप में उसका उदर पोषण करते रहेंगी, और जब उसका शरीर समाप्त हो जाएगा तो मैं तारक मंत्र दे करके शिवत्व को प्राप्त करा दूंगा, शिव सायुज्य को प्राप्त करा दूंगा। इसलिए इस आनंद वन में जो भगवती अन्नपूर्णा का स्वरूप है वो नित्यानंदकरी कहा जाता है। तो नित्यानंदकरी जो अन्नपूर्णा का स्वरूप है, और अगर उसको स्वरूप को देखते हुए और इस भगवान विश्वनाथ के पावन धाम को देखते हुए आज जो नित्यानंद जी महाराज की प्रासंगिकता है वो और भी बढ़ जाती है। In this place, Lord Vishwanatha and Mata Annapurna Devi, they have given boon that any person and lives, survives in planet Earth, Mata Annapurna Devi will feed that person, and after the person leaves the body, Lord Vishwanatha will give him liberation by giving the Taraka mantra, by chanting the Taraka mantra. So, Nityananda Kari is the sloka which is attached to Mata Annapurna Devi. The same name as Acharya ji has mentioned, Mahamandaleshwar has mentioned, the same name is attached to Swamiji, and his presence is very significant. अंत में मैं जो संत का जो स्वरूप होता है उसकी महिमा एक शार्दूल विक्रीडित छंद के श्लोक के माध्यम से बता करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। धर्मे तत्परता मुखे मधुरता, दाने समुत्साहिता, मित्रे वंचकता, गुरौ विनयिता, चित्तेति गंभीरता, आचारे सुचिता, गुणे रसिकता, शास्त्रेति विज्ञानिता, रूपे सुंदरता, हरौ भजनिता, सत्स्वेव संदृश्यते। धर्म के प्रति तत्परता, मुखे मधुरता, मुख में मधुर वाणी, दाने समुत्साहिता, दान में उत्साह का भाव, मित्रे अवंचकता, अपने मित्र से कोई वंचकता नहीं, अवंचकता का भाव, मित्रे वंचकता, गुणे रसिकता, और पर गुणे प्रीति, गुण में रसिकता का भाव, शास्त्रेति विज्ञानिता, और शास्त्र में गहन ज्ञान विज्ञान, रूपे सुंदरता, रूप में सौंदर्य लावण्य, हरौ भजनिता, भगवान के हरि के प्रति, भगवान विष्णु के प्रति भक्ति,
सत्स्वेव संदृश्यते, ये संत के अंदर दिखाई पड़ता है। और आज स्वामी नित्यानंद जी के महाराज के अंदर मैं ये सारे गुणों को देखता हूँ। बहुत बहुत आभार आपको, धन्यवाद। Towards dharma, eagerness, enthusiasm, friendliness towards other human beings, and well-read beauty in form, bhakti to Vishnu, all these are there. The greatest qualities that is reflected in a saint, all the qualities are reflecting in Swamiji. I thank the chief priest of the Varanasi temple for coming and gracing the occasion. Now we have the Rajkumari of Kashi, Varanasi, the Raja's daughter, the eldest daughter and son-in-law. I welcome both of them. Please understand, Kashi Raja's family is very closely associated to spirituality, and they are the oldest, the Raj Parampara recorded in Hindu tradition, in Hindu scriptures. Even when Shankara was questioned about the householder life by Ubay Bharati, the wife of Mandana Mishra, he enters into the Kashi Raja's body. At that time the Kashi Raja was dead. So he enters into his body and 30 days lives as Kashi Raja. So in a way Kashi Raja's Pita also becomes Shankara Pita, because Shankara lived 30 days in that body and lived the life of the king, and all the Grihastha life and the household affairs, he gets first-hand experience, comes back and answers all the Ubay Bharati's questions, and accepted by Mandana Mishra as Guru, and ascends the Sarvanya Pita, the Pita of all-knower. So the Kashi Maharaja's parampara, the Kashi's king tradition, has a very close association with sadhus, sannyasis, spirituality and Hindu tradition. I welcome Rajkumari, Ma Krishna Priya and Sri A.K. Singh Ji, both of them. It's so nice to have them here. We will request Rajkumari and the son-in-law of king both to say few words. परम पूज्य स्वामी जी, नित्यानंद सरस्वती जी, समस्त भक्तगण, मित्रों, दोस्तों, बाबा विश्वनाथ, माँ गंगा की धरती पर हम आप सब आपका स्वागत करते हैं। हम कृतज्ञ हैं आपके इस काशी की धरती पर अध्यात्म की धारा गंगा की लहर की तरह बहा रहे हैं। यूँ तो गंगा इस समय कराह रही है अपने दर्द से, अपनी व्यथा से, और इसकी आवश्यकता है। इस समय हम सब धर्मप्रिय भक्तजन की आवश्यकता है, सब मिलकर के गंगा का अविरल धारा, निर्मल धारा जो सनातन है, जो निरंतर है, वो आगे बढ़ता रहे। स्वामी जी इस पर अपना कदम रखें और काशी की धरती को पुण्य करें। मेरी यही आभार है। धन्यवाद। थैंक यू। In the Kashi, the pain of Ganga and the saving the Ganga, he is requesting that Swamiji will also do work for saving Ganga, and the way the whole Nagari, Kashi Nagari needs the renaissance of spirituality, and the renaissance of spirituality is happening through Swami Paramahansa Nityananda Ji. So it's so nice to have everyone here. Actually, the whole Kashi is here today. The biggest sannyas pita of the Kashi, Govinda Math,
and Kashi Raja, the Kashi's kingdom, and the temple priest, the Brahmana, Kshatriya, and the Sannyasi Sampradaya, Pita. The whole Kashi is here today by the grace of Vishwanatha, and I thank the whole Kashi for welcoming us and hosting us. Actually, the whole spiritual side of the Kashi is represented by Govindapita and Mahanirvani Akada, and the whole kingdom of Kashi is here. Rajakumari and Sri A.K. Singh ji both, and the Vishwanath Temple Chief Priest. So nice. With this, I thank all of them for being here and hosting us, welcoming us into Varanasi, because they are the representatives of Varanasi. Thank them for hosting us and welcoming us into Varanasi. I bless you all. Let you all radiate with integrity, authenticity, responsibility, enriching and causing eternal bliss. Nityananda. Thank you. Nityananda Dhyanapītam, Nityananda Nagar, off Mysore Road, Bidadi, Bengaluru. Phone 08027279999. www.nityananda.org. www.youtube.com/Life Bliss Foundation.